Now there is a need of dialogue also. There is a need of communication also. And so we have taken this initiative, and I thanks for all the members of these people to organize such type of events now and then. I express my sincere thanks for giving me opportunity to express my feelings on this platform. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Saab. Now I would like to request from Bangladesh, Khalidur Rahman, Mr. Khalidur Rahman. Khalidur Rahman. Yeah. Yes, Khalidur Rahman. Would you like to please introduce yourself? Hello, this is Khalidur Rahman Shakil. I'm from Bangladesh and also I live in Dhaka city. I work in different sectors in Bangladesh, but basically I work for Amnesty International since 2016, and then I formed a forum for war crime trial stays. So this forum is working for justice for genocide. So another human rights activities in Bangladesh, I do it very well with my some good friends, some juniors, and some other seniors friends also. They are along with us, and we also give a time to Bangladesh community. And also we try to connect some people who are working for peace countries. So so they are the Bangladeshi people. So we connected them, and also they are very much connected for peace activities. This is my introduction. Hi, thank you so much. Hope we talked lots. Thank you. Thank you, Khalidur Rahman. I'd like to request, please. Madam, your sound is not coming. To whom you are inviting? Wasim Ali Qureshi. Please introduce yourself for our audience or viewers who can listen to us. So please introduce yourself. Unmute your mic. Magdum, unmute your mic. I think Mohammed Wasim Ali Qureshi. Yeah. Thank you. Yeah, thank yeah. you Now so we are much. listening to you. Yeah, thank you so much, Neelban brothers, and good evening to everyone joining from different corners of the world. And I'm thankful to my host for inviting me to express my views on that. First of all, I would like to congratulate my leader, Mr. Neele Band, that he has organized this very innovative and creative programs by collecting different flowers from the bucket of the world to bring them and to spread the smell of the peace all over the world. This is one of the innovative initiatives. And again, thankful to Mr. Anil, who have linked me with Mr. Neele Band, and for this joint missions we are there. Now I will shortly introduce about myself. I'm Makhdoom Wasim Qureshi, and I'm working in the provincial capital of Punjab, Lahore, and I'm by profession, I'm lawyer and I'm the media person. I do practice in the constitutional and the human rights issues, and along with that, I'm the founder of one organization's Pakistan Global Initiative, and along with that, I'm running a think tank of the lawyers that is called the Lawyers Strategic Councils of Pakistan, who always keep an eye on the national and international issues. Further, we are the group directors in the publications group. One of them is the Daily Tarjumane Waqt, and the other is the Weekly Mera Sach. This is my short bio, and I'm working since 12 years as a peacemaker, as a writer, as an activist, and the human rights defender from Pakistan. Now I'm coming towards the world peace and the friendship mission. Look,
every human, in the words as the Mr. Shamsuddin Tamboli was telling, that we are here in this world for the sake of identity, and everyone wants the identity, and this identity clashes to somewhere, have detract us to just win the race from each and others. But now in the 21st centuries, for the sake of of international human rights and international universals global rights, we we should carry on our legacy, we should carry our thought to bringing the peace in the world. Whatever the, I believe, whatever the Almighty has created all the human equal, and whatever the religion everyone is professing, that is their fundamentals and their constitutional rights and their basic right, what they have owned from their families. We should not put into that. Just keeping aside all the religions, caste and creed, the global mission of friendship and the peace, whose flags Mr. Miliband has waved in this critical times of the movement by selecting the divergent regions of the world. And he has planned whatever this region from India to South Africa. I guess I am the one of the blessed one who have joined it. And this missions, we strongly endorse it from the Pakistan. And its need is very necessary because, you know, in every state has their own policies and their own interest. But whatever the public have and whatever the role they can play to bringing the message together, that is also an important one. And every individual count, every word count, every pictures count, every year moment count. And whatever the movements we collectively will do, it will create global impact on international level. So to making the dream of Mr. Miliband, which is our dream also, to promote the peace with our neighbors and the rest of the countries, we have joined hands, and under Mr. Miliband leadership, we strongly endorse it and support it, and whatever the can do for that, we will inshallah strongly do, and we will be standing side by side with the leaders to implement it in true letter and spirit. Thank you. Well said. Thank you so Over to much, sir. host. Thank you so much, sir, that you have introduced yourself, and thank you so much that you have come to my show and telling about peace and who you are really. And you are doing a really great job and spreading peace and working out the mission of the friendship. And thank you so much for coming. And thank you so much for your introduction. So I think let's keep moving on and giving people and got to know each other, and so Now I would like to and request we Anil will Kapoor. ask. Mr. Anil Kapoor is remaining. Please add him. Mr. Anil Kapoor, yeah. Now I would like to request Anil Kapoor to give your introduction, please. Yes, thank you so much. First of all, I would like to thank to Mr. Miliband and Mr. Makhdoom Wasim and Ms. Baria Ali and over to you as well. Are you hearing me? Yes. Yeah, we are You're audible. listening. Yeah, I'm very happy to see all the peace activists on a one platform. Very good initiative and very high impressive initiative. I would really highly appreciate to Miliband for organizing such a great platform to connecting all the global peace maker. And let me introduce myself. I'm Anil Kapoor from Karachi, Pakistan, and I'm well experienced young development professional, peace promoter, and human rights activist, having more than 10 years professional experience serving dependent and vulnerable segment of society. I have been functioning, building peace, preserving the human rights, and also involved in the different peace and interfaith harmony activities in the Pakistan. I'm passionate to contribute to sustainable development
goal for this. I'm the member of the different national and international platform as well. I'm also the founder of the organization Enabling Society Foundation in Sindh and Pakistan on different themes. So thank you so much. This is my introduction. Thank you so much. Thank you so much, Anil Kapoor, and really nice to meet you. अच्छा, अब हम अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं प्रॉपरली, और बैरा अली जो है वो उनके पास 3 सवाल हैं आप लोगों के लिए, और वो बारी-बारी सवाल करेंगी, और एक सवाल पहले किया जाएगा और फिर सब पार्टिसिपेंट ने अपना व्यूज के ऊपर उसका जवाब देना है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज एंड देयर डोमेन ऑफ वर्क. So over to you, Baira, for the first question. हमें सुना आना चाहिए प्रॉपरली, समझ में आना चाहिए, कोई जवाब दे हाँ. पाएंगे? अदरवाइज उनका सवाल आप रिपीट कीजिए, वो जो बोलेंगे मैडम, यू Okay, रिपीट दैट क्वेश्चन. बिल्कुल. ओके, तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगी और वो भी है पीस के ऊपर. तो जो मैं फर्स्ट सवाल है और वो है इंग्लिश में. कैन friendship among the common people bring peace around the global? If yes, how we can make it happen? So yep, please tell us. अच्छा, बैरा ने जो सवाल मैं तो किया पहले- है वो ये हाँ, किया ये सुना ही है आया, कि समझ में आया मुझे, हाँ समझ बिल्कुल में आया, पर प्रॉब्लम ये है मैडम कि एक ही सवाल अगर आप सभी से करोगे तो यू विल गेट द सेम रिप्लाई, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव और एम इज वन ना. ये सब हम लोग ने घोल घोल के पी लिया है सब. तो एवरीबॉडी विल, हाँ, अभी लोग वही जवाब देंगे जो मैं दूंगा, मखदूम मोहम्मद भी वही देगा, अनिल भी वही देगा, चंदू भी वही देगा जवाब. तो इट विल बी राइट. रिपीटेशन. तो मुझे ऐसा लगता ओके, है कि थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस यू आस्क, ठीक है, सो दैट हम देयर विल ऐसा बी अ करते हैं. वैरायटी. तो पहला सवाल आपसे है नीले बहन साहब, अब आप इस सवाल का जवाब देंगे, फिर हम और लोगों से दूसरा सवाल करेंगे. चलो ठीक है, आपने जो बताया कि पीस कैसे अचीव किया जा सकता है, हाउ वी कैन अचीव पीस बाय आवर स्मॉल initiatives. Peace is not a word. Peace does not mean just a tranquility, और हम जिसे कहते हैं शांति. Peace has a broader meaning. What we felt about the peace, what is the perception of peace to us, is P for peace. Means it's a promotion, it's an endorsement. P for peace, E for education, A for aptitude, then C for culture, and E for environment. When we club all these things, when we achieve the targets and goals towards all these things, then and then only the real peace will be achieved. अब इसके लिए डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट लोग जब साथ में आएंगे तो वो पीस अचीव करना, टू अचीव दैट पीस इज लिटिल बिट इजियर. बट टू बिगिन विथ द पीस मीन्स द ट्रैंक्विलिटी और सीरेनिटी इज रिक्वायर्ड. जब पूरी दुनिया में अमन और शांति होगी, ही सब दुनिया के लोग एक दूसरे के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, and they will try to work together, cooperate together, a trust will be developed. तो ये तो एक चिंगारी है, ये चिंगारी है, इसको जब हम सुलगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे शांति की, तो ही ये आगे बढ़ पाएंगे, एंड पर्सन टू पर्सन आगे बढ़ पाएंगे. स्मॉल फ्लेम, हम लोग को पूरी दुनिया में इस पीस और शांति का माहौल आगे बढ़ाना है. तो इसलिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ताकि वी विल विजिट डिफरेंट कंट्रीज, meet with different people. Actually, we will try to meet with masses, because intellectuals and class, they know what is the purpose of peace, what is the meaning of peace, whether to achieve it or not, whether to continue fighting because of their vested interest or like that. But the common man है, he wants the peace, क्योंकि उसकी रोजी रोटी, उसका bread and butter depends on that peace. तो इसीलिए we will try to meet the common man. We will try to amass the society. We will gather them. We will convince them, we will aware them, we will educate them, and try to loud the voice of peace, and ultimately we will reach our goal. That I'm much more confident about it. Thank you so much, sir, that you have tell us about the peace, and it was really wonderful that you have told about the peace, and that's a great information. So I will now ask the same question to Mr. Chandrasekhar, and it will be that can friendship among the people bring peace around the globe? If yes, how we can make it happen? Yep.
So yes, Mr. Chandrasekhar, please tell us, explain. Hello. In my perception, peace should be eternal. It should be in the heart. And we all people are trying through this project. जैसे कि आप जानते हैं, एक फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन, ये एक लोग इसमें रहता है, उसमें सभी लोगों में पोटेंशियल रहता है। और अपन जैसे कहीं मिलते हैं, अपने ग्रुप में मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, या अपने समाज के साथ मिलते हैं, अपने अपने फोरम पे जहाँ मिलते हैं, तो इसमें सभी लोगों ने इसमें बढ़ावा देना चाहिए पीस को। पीस ऐसी चीज है कि जो माइंड को भी शांति देती है, और ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी बहुत सोचना है। कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किया हूँ। बेसिकली मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ, तो मेरा बच्चों से ज्यादा संबंध आता है, तो मैं बच्चों को हर वक्त कन्विंस करते रहता हूँ कि बाबा क्या करना चाहिए, कैसा लाइफ जीना चाहिए। तो उसके लिए एक 8-10 पॉइंट मैंने नोटिंग किया है। देखिए आपको अगर पसंद आता है। पॉजिटिव वेज टू प्रमोट पीस इन अवर बैडली ब्रोकन वर्ल्ड। पहली बात तो यह है कि मेक ए पर्सनल कमिटमेंट विद नॉन वायलेंस, ये पहला है। When you see someone rebel, whether he or she is lost, confused, upset, or has fallen, don't act like you don't see the person. Provide some help. अगर कोई ऐसा दिखता है कि वह कोई प्रॉब्लम में है, कुछ है, उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, आप उसको छोड़ो मत, आप उसको तो करो। वो ये दिस इज वन ऑफ द वे टू मेंटेन द पीस। शो ए चाइल्ड हाउ टू अचीव calmness through deep breathing. जब आदमी एक्साइट हो जाता है, कुछ करने का देखता है, तो उसने 2 मिनट के लिए ऐसा लंबी सांस लेके छोड़ना है, तो वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स हो जाएगा। ये सब बच्चों के लिए है। मैं बच्चों के बहुत सेमिनार में लेक्चर्स देता हूँ। बच्चे मेरे को सब, और ये बच्चों के लेवल से अपन ने शुरू होना चाहिए। जब छोटे बच्चे जब सीखेंगे तभी जाके वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बाद में शो ए चाइल्ड हाउ टू बी काइंड टू एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में भी उन्होंने बराबर ध्यान देना चाहिए। स्पीक आउट अगेंस्ट द प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू सी इट। इफ यू आर ए मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी, आस्क हाउ यू कैन गेट मोर इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग पीस थ्रू इट्स प्रोग्राम्स एंड मिनिस्ट्रीज। बाद में रिगार्ड पीपल हु योर फीलिंग्स एज योर पर्सनल टीचर्स ऑफ हाउ टू मेंटेन ए पीसफुल नेचर। बाद में है शो ए चाइल्ड हाउ टू बी ए काइंड वल्नरेबल पीपल, द होमलेस, दोज विथ फिजिकल और कंजेटिव डायबिटीज, एल्डर पीपल, दैट appears different to the child। छोटे बच्चों को समझ नहीं आता, वो उसको समझाना चाहिए कि वो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अंधा है, लंगड़ा लूला है, तो उसकी जानकारी पूरी बच्चों को देना चाहिए। बच्चों के लेवल से अपन ये कर सकते हैं। When you feel excited, when you feel slighted, ask yourself if what happened was really about you or if it has about the other person. When you realize that it was about the other person, find in your heart some compassion for the person, realizing that he or she is almost surely struggling। अगर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो। Serve on community and task forces that work to make your neighborhoods, schools and workplaces safe. Don't hide from life. Have faith that there is still an abundance of good in the world। मेरा ये कहना है कि अपन अपने आप को पहले बदलो, फिर अपने आजू बाजू के लोगों को बदलो, फिर अपने मोहल्ले को बदलो, फिर अपने गांव को बदलो, फिर देश को बदलो। और ये शुरुआत से होता है। बोलते हैं ना कि एक एक बूंद से सागर बनता है। अगर एक एक आदमी अगर जुड़ते रहे तो ये दुनिया बहुत शांति से जी सकती है। जैसे कि हमारे बंट सर ने पहले बोला है कि वह संस्कृत में वो ये है श्लोक है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरी फैमिली, पूरा वर्ल्ड एक फैमिली के जैसा है। और ये जब शांति से रहेंगे, थोड़े बहुत घर में झगड़ते रहते हैं लेकिन फैमिली। थैंक यू।
थैंक यू सो मच चंद्रशेखर, आपने बहुत अच्छा इसको कनेक्ट किया बच्चों के साथ, क्योंकि आई माई सेल्फ एज एन अर्ली चाइल्ड एजुकेटर, तो आई कैन रिलेट इट कि अगर हम अभी छोटे बच्चों को ये बात सिखा दें कि डिफरेंसेस को कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे दूसरों की कल्चर और उसको रिस्पेक्ट करना है, तो आई थिंक ये बच्चे जब बड़े होंगे तो दे विल बी अ ग्रेट पीस मेकर, तो वो हमारी तरह डिफिकल्ट नहीं होंगे. It would be easy for them to accept the things. Exactly. So now over to you, Baira. What is your next question and with whom, please? Thank you so much, Miss Mariam, for giving me the chance to talk, and thank you so much. And my next question, as we always say, and I think that it is time to ask from Khaldur Rahman, and the question is that does an individual small action impact global peace? How we can engage people in such acts of kindness that support togetherness, I think that will be thing. So, and peace. So yep, please tell us and explain about it. So yep, Khaldur Rahman. I think he seems disconnected. So we can send this question to Anil Kapoor. yeah. Thank you so much for the question. First of all, in order to ensuring peace, I would like to share of my experience that I have been working for ensuring the peace in the community for last 10 years on the different platform. For this, I have participated in the Commonwealth Youth Forum in Malta, Europe. Then I sure to create peace over there. And beside this all, I am the part of the different national and international forum, and I am contributing ensuring peace at different platform as well. That your question is to connecting the people. So in my point of view, that we can connecting the people throughout the world through the different platform. Likewise, that we are connected here in on डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल. और इसके अलावा डिफरेंट हमारे फॉरम्स हैं कि पीस के लिए नॉट नेसेसरी कि हम लोग डिफरेंट फॉरम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, बल्कि पीस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे इनर सर्टिफिकेशन है और हमारे अंदर से ही उसके लिए हमारी एक वो जज्बा होता है जो हम लोग ऑलरेडी जितने भी पीस एक्टिविस्ट थे या सोशल एक्टिविस्ट जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमें किसी ने फोर्स नहीं किया है हमें काम करने के लिए, लेकिन एक ये हमारा पर्सनल एक हमारी मोटिवेशन है. मेरे तो सिंस यूनिवर्सिटी डेज से ही मैं इन चीज़ों में इंगेज हूँ अपने इस पीस मिशंस में. तो मैंने डिफरेंट इनिशिएटिव अपनी कम्युनिटी लेवल से स्टार्ट किया था. तो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छी बात के लिए हम स्टार्ट करते तो आप ये कारवा खुद ब खुद बनता चला जाता है. और ये ही हमारा एक जो वर्ल्ड पीस मिशन का है, जैसे नीलेबन है या डिफरेंट पीस मेकर्स हैं, शमसुद्दीन साहब ने बहुत, चंद्रशेखर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, मखदूम वसीम कुरैशी हैं या डिफरेंट हमारे पीस मेकर्स हैं जो कि ऑलरेडी इंगेज है और प्लेटफॉर्म से हम लोग ट्राई कर रहे हैं पीस इंश्योरिंग पीस करने के लिए हमारी एक छोटी एफर्ट्स के थ्रू. तो मुझे बहुत खुशी है कि इस प्लेटफॉर्म का और इस प्लेटफॉर्म का मैं पार्ट हूँ और ऐसे जो डायनेमिक पर्सनालिटीज़ हैं या डायनेमिक हमारे पीस मेकर्स हैं उन लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ. ये हमारा एक रोल मॉडल है और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि इस मिशन को आगे लेके जाएंगे और इस पीस मिशन को पूरी दुनिया में हम लोग इंश्योर करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you. We have two more participants, or Salil Tamboli and Suresh. So I would request them to introduce Madam, themselves they are first. not the participants. Madam, they are not the Okay. participants. They are the guests. So you Okay. directly asked to Dr. Samasuddin Tamboli and Mr. Okay. Mohammed Qureshi. They are our participants. You ask the questions to them. These are the guests. Okay. Yes. Okay. Thank you. Okay, Shamsuddin Tamboli. Yes, Faida, what is your next question to Dr. Sir? Okay, so be ready for my next question because it is going to be an interesting question. So, so the question is that does being resilient help us to be a peaceful nation or individual? How should someone react
to those actions that hurt their beliefs, values, and culture. So tell us about it. Tell us and explain about this question. अनम्यूट करने बोलो उनको। Dr. Saab, please unmute your mic. Yeah. It's really very interesting question. But as you all know that we have time restraint, so we have to be very brief in responding to this question. But what I think our mission, our appeal is for ordinary people, common people. Our appeal is not to politicians, because we may not be able to correct the politicians. We have to work from ground level only, and to start, we have to start working at local level. Then only we'll reach at our global level also. What I think personally, each and every individual is unique nowadays, and we have to accept the individual differences of the people. And not only we accept this, but we should value their individual differences also. Considering the present condition, we have to give priority to this our principles. And I think for peacemakers and people, those who want to work for non-violence, for them, enemy number one is fanatism and fundamentalism, which is rising nowadays in the entire world. And so I think nowadays each and every individual wants to live free, fine, and fearless life. And so we have to introspect ourselves, we have to identify the problems, and we have to express the remedies to these problems. And how can we start it? So we have to accept the fact that pluralism is the nature of our nation, our world. So pluralism, now the in question, cultures are there, beliefs are there, atheism is also there. So this type of individual differences, unless we respect, we cannot go ahead. So particularly now my friends are here, those who are from Muslim countries. Now also we are following the laws of 6th century, that is like blasphemy laws, etc. So are these laws useful in these days? So I think I will explain within a half minute. So we have to accept the fact that individual differences are there, and we have to respect these individual differences. If there are different people, they are doing very good work, we have to appreciate such type of good deeds. We have to motivate good deeds. Appreciation is very important. And the most important thing, we should have the feeling of affection also. Affection is very important. So acceptance, appreciations, and affections, these three values can help us to reach at the heart of common people, and then only we will be able to go ahead. Thank you very much. Thank you so much. बहुत अच्छा जवाब था। और इसमें लेकिन जो है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस हो गया है कि अगर कोई हर्ट करे फीलिंग्स को, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई ऐसा वाकया हो जाए कि कोई मेरी फीलिंग को हर्ट कर रहा है, मेरे बिलीफ पे बात आ रही, तो हाउ शुड आई रिएक्ट एज एन इंडिविजुअल? बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट कि इंडिविजुअल मैटर्स ही आगे बढ़ के ग्रो करके पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं, या कोई भी जो है मुद्दा बनता है किसी भी रेस्टलेसनेस का सोसाइटी के अंदर. So how should I react to that? Who would like to comment on that? Mohammed Wasim would like to. Yeah, sure. It's a very good question. आपने बड़ा अच्छा point raise किया है कि जब individually आपका अगर कोई बंदा raise करता है तो किस तरीके से उसको tackle करना चाहिए. मैं आपको छोटी सी example देना चाहूँगा. Here in the लाहौर, मेरे अपने शहर के अंदर कुछ माह पहले कुछ डॉक्टर्स और लॉयर्स के दरमियान में एक इशू क्रिएट हुआ. उसका इनिशिएटिव ये था कि एक डॉक्टर साहब ने, उन्होंने
कुछ ऐसे हेट स्पीच किया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया against some lawyers community. And a lot of lawyers got angry with that comment. They went to that hospitals and they had a fight with each other, and that was the very pathetic and disturbing moment for a lawyer, for a peacemaker, and for a peace promoter like me. Even it was a stigma on my professionalism and my institutions. In that event, we were the first persons who, even with a uniform, went to that spot with that hospitals, with some friends, with some peacekeepers, and we apologized to those doctors from our lawyers community on behalf of our professionals that what I had did non-professional activities in the hospitals. We apologized them. Even we were not ashamed by apologizing by all the patients and the doctors, and it was not a good deed. And you cannot imagine ये छोटा सा जो एक्ट था जब हम वहाँ फूल लेके गए, वो जो डॉक्टर्स का एंगर था वो एंगर भी कूल डाउन हो गया. And the media was there and they were appreciating our things कि that you are very good people. Even we were not afraid कि शायद हमारे साथ बुरा हो सकता है. The thing was that सबसे पहले आपका intention है. Peace promote करने के लिए individuals का intention होना चाहिए. You should be a very cool soul. और उस intentions को आगे बढ़ाने के लिए even आपकी छोटी सी smile एक झगड़े को एक खुशामदीद मुलाकात में और दोस्ती में convert कर सकती है. और ये छोटा सा जब आप एक इनिशिएटिव्स लेते हैं, देखें दुनिया भर में अब हम कई मुल्कों के एम्बेसडर्स यहाँ बैठे हैं. आप कहते हैं पीस कैसे प्रमोट करता है. नीले बैंड साहब ने ये जो पीस आज का इवेंट है आपको होस्टों को मिलाकर और रिहान अल्लाह वाला की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये सारा ऑर्गेनाइज करके आज पीस की बुनियाद रखती है. दिस इज द फर्स्ट विजुअल मीटिंग विद ऑल ऑफ द फ्रेंड्स. हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे पर स्माइल्स देख रहे हैं, एक दूसरे के व्यूज सुन रहे हैं, और ये अमन की बुनियाद आपने रख दी है. एंड सेम जब आप ये जो स्टेप्स बज़ाहिर आपको छोटा नहीं है, ये जब आपका ये स्टेप्स आपके फेसबुक पर, आपके यूट्यूब पर, आपके दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशंस पर जाएगा तो दैट इज अ पॉजिटिव मैसेज एंड पीपल विल बी अप्रिशिएटिंग इट कि किस तरह ये मैसेज के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि दो नेबर्स कंट्रीज हैं जिनके बारे में अच्छे ताल्लुकात को ब्लेम किया जाता है. वी आर लिस्निंग टू ईच अदर, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर. और रही बात के आप रिलीजियस बिलीव्स की, तो बीइंग सबसे पहले इंसान होने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड मुस्लिम. और दुनिया का कोई भी रिलीजन है, कोई मुस्लिम हो, हिंदू मत हो, आपका क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कुछ भी है, दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो तशद्दुद को प्रमोट करता हो. हर मजहब, every religion give the message of love, give the message of humanity, give the message of brotherhood, give the message of respect. And how we can elaborate it, how we can tell them. तो मरियम आप और जो आप जैसे होस्ट है इस इवेंट्स को आपने कोलैबोरेट करके जिस तरीके से अपने मुल्क के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हुए इस मैसेज को आगे लाया है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने इसको प्रमोट किया, इस पर बात की, इस पर उसको आगे ला रहे हैं और हमें एक दूसरे को सुनना है. जहां तक कंट्रोवर्सीज है, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें क्योंकि ये मंथ जा रहा है 12 रबीउल अव्वल का, जिसमें भी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ आवर होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who in his last sermon gave the address that no one is nothing to do with anyone. किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है. किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर किसी पर कोई फोकियत नहीं है. आप में से आला वो है जिसका अखलाक अच्छा है, तकवा में ऊपर है, परहेजगारी में अच्छा है, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म में अच्छा है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है. ही इज अबव all the religions. I believe is the created by the Almighty, and being the creator of Almighty, Mr. Neeleban and the Mariams and the Chandu Gorkar, that is our responsibility, moral responsibility to respect every religion. Whatever anyone is doing, don't put our nose into anyone's affairs, and we should follow the way and the teachings whatever our religions has given. And I tell you by summarizing your question that every religion of the world
stress their humans, their individuals to follow the path of peace and the love. And this is the path bringing us from India to South Africa, and soon it will start. वेल सेड वसीम, बहुत अच्छे. Thank you. थैंक यू सो मच मोहम्मद वसीम साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया. अच्छा, एक सवाल मेरा चंदू शुक्र साहब से है. मैंने आपको चंदू कहा, सब चंदू कह रहे नहीं हैं. नहीं, चंदू इज माय निकनेम, डोंट वरी, यू आस्क. Okay, so thing is that क्या individual psychology matters to have this peaceful nation? करता है, क्योंकि देखो जैसा है, हर आदमी का एक जीने का तरीका होता है. अगर मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, अच्छा कुछ खाता हूँ, तो वो इफेक्ट अपने पर्सनालिटी पे आता ही है. समझे क्या? पहले मैं अपने आप को बदलना चाहूंगा. अगर दूसरे को मैं समझाना चाहूंगा ना, तो आई शुड बी वेरी परफेक्ट. मैं पहले अपने आप को बदलूंगा, मैं उसके लिए सक्षम करूंगा कि बहुत नहीं, मेरे को ये करना है. यू शुड लीड बाय एग्जांपल. ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के चल रहा है, मैं सिर्फ लोगों को सलाह देते रहूं और मैं खुद कुछ ना करूं, तो लोग नहीं गिनते. अभी मेरा 50 साल का, मैं बोला स्पोर्ट्स में मेरा एक अनुभव है. तो अगर अपन उसको प्रेम से समझाओ, कोई भी चीज अगर गलत हो रही है ना, अगर अपन उनको प्रेम से समझाएंगे ना, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक वो जानेंगे नहीं कि ये गलत है. अपन ने वन शुड टेक द लीड. क्या होगा, ज्यादा नहीं सुनेगा वो, लेकिन वो जब शांति में बैठेगा और सोचेगा ना, तो उसको रियलाइज होगा कि अपन ने क्या अच्छा किया. हर आदमी को मालूम रहता है कि मैंने जिंदगी में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, क्या आज दिन भर में मैंने क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है. और दूसरी बात यह है कि जो अपना नहीं है वो दूसरे का है. ये बिल्कुल माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे पास जो भी है, मेरे पास 2 रोटी है तो मैं 2 रोटी खाऊंगा, मैं किसी की दूसरे की छीनूंगा नहीं. ये जब तक के हर इंडिविजुअल जब तक समझेगा नहीं कि वाह मैं जैसा हूँ वैसे वो भी है. अगर मैं मेरे 2 रोटी में से अगर एक आधी रोटी किसी और को दे सकता हूँ जो भूखा है, या जो उसको कुछ कपड़ा दे सकता हूँ, कपड़ा ढकने के लिए, तो वो सही, वो शुरुआत है. और वहीं से वो सब शुरू होने वाला है. पहले इसीलिए मैं जब भी बोला कि पहले अपने आप को बदलो, फिर अपने आजू बाजू के लोगों को बदलो, फिर समाज को बदलो, फिर देश की बात. बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, अपन अपने साधारण लेवल पे भी किए ना. जैसे अभी कुरैशी साहब ने बोला कि ये अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर सब 10 लोग अगर अच्छे तरीके से सोचेंगे ना, तो 10 लोगों का मल्टीपल होकर 100 लोग होंगे, 100 के 1000 होंगे, 1000 के लाख होंगे. तो ये अपने को शुरुआत करा, अपने अभी बीज बो दिया. आप दोनों लोगों को मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये इतने छोटे उम्र में भी आप इतना अच्छा करते हैं. आपके देश की मलाला सैनिक जय उसका उदाहरण है. अगर आप भी इसमें ये एज में आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, तो सच में दुनिया बदल रही है. आप इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने लेवल के भी लोगों को. अभी आप शुरू देखिए, अभी मलाला यंगेस्ट लेडी इन वर्ल्ड, उसको नोबेल प्राइज मिला. ये बहुत अच्छी बात है कि जो छोटे बच्चे जब सीखेंगे ना, वो लोगों को ऑटोमेटिक सिखाएंगे. तो मेरा ये मानना है कि अपने आप को बदलना है पहले. धन्यवाद. और मरियम सर चंदू ने बड़ी जबरदस्त बात की. मैं सिर्फ एक लाइन इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखें, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लाइफ. द वन इज दैट वट एवर द जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपका लिखा हुआ है वो आपको ही मिलना है. दुनिया की कोई ताकत उसको स्टील नहीं कर सकती. जो आपके मुकद्दर का, वो आपको मिलना ही मिलना है. एंड द नंबर 2, दैट इज द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज योर डेथ. That is always following you. I don't know okay, we are having a conversation right this moment, and for the next moment either I will be alive or not. Nobody in the world, no doctor in the world can give you assurance either you will be alive for the next moment or not. When there is 2 points, it's on very realistic points जिनके बारे में कोई यकीन दहानी नहीं है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? Why not? We should love each other. हम क्यों ना मोहब्बतें बांटे, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की फीलिंग का ख्याल रखें, एक दूसरे के बिलीव्स का ख्याल रखें. हाँ, अगर कहीं हेल्दी कम्युनिकेशन फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट और सस्टेनेबिलिटी अगर मुआशरे को पॉजिटिवली आगे लेके जाया जा सकता है, तो हमें वो बिल्कुल करना चाहिए.
और इसी इसी एक पॉइंट पर जो ये बैंड जो इनिशिएट किया है कि अमन का झंडा उठाकर 10 सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मिशंस को, अपने ड्रीम को टू चेंज इनटू रियलिटी, एंड स्टिल ही एक्टेड विद दैट, एंड ही हैज, although we are in the way and soon inshallah going to be succeeded due to the covid and other it was got delayed, but देखें इसके दौरान भी we find Mariam and the team, your Abira and the rest of the words, and we are promoting our things like जब आप स्लो इवन कभी की चाल भी चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन मंजिल आ ही जाएगी, because we are in this way of peace. We are going to put some line from the turtle, because आप slow एक ना एक दिन when you got understandings you will keep loving to each, and inshallah हम नीले बैंड साहब के बिल्कुल के शाना बशाना है, उनको अप्रिशिएट करते हैं। आप सब लोग मेरे Thank भाई you so हो, much. भाई से भी बढ़ के हो, तो आपकी जब बातें सुनने को बड़ा अच्छा लगा सब ये सब चीजें, क्योंकि मैं तो हर वक्त बोलते ही रहता हूँ, बकबक करते रहता हूँ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, और आज सब आप लोगों का जब व्यूज मैंने सुना और आपको जब देखा, आपकी जो फेस के ऊपर की जो एक इनोसेंस और मासूमियत दिखी, जो खुदा का खास्ता बिल्कुल असली है, तो वो सुन के बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सर। आप डिजर्व करते हो सर, नहीं, थैंक इतने यू सो साल से मच आप सर, लेके आप डिजर्व करते हो। बिल्कुल डिजर्व करते हैं, डेफिनेटली डिजर्व तो डिजर्व पीस करते हैं करता सर। है, ये जो डिजर्व पीस करता है, पीस है जिसने अपने हम सब लोग को मिलाया है, एक साथ लाया है, तो पीस डिजर्व एवरीथिंग, पीस डिजर्व द ह्यूमैनिटी। Yes, बिल्कुल सही बात लीडर कही। अच्छा, I have one more question. एक बात बोलूं, Yeah, sure. एक लीडर, सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों को बोलता है कि मेरे साथ चलो, मेरे पीछे चलो नहीं बोलता है। और हमारा बंड ऐसा है कि बोलता है चलो मेरे साथ चलो, मेरे पीछे मत आओ। ये एक लीडर की अच्छी क्वालिटी होती है, ऐसा लीडर है हमारा मिले। पता नहीं, मुझे इसीलिए तो इतने ऐसा साल लगता से है, आई फील दैट कि यू शुड गो अहेड ऑफ मी, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ में पीछे से आऊंगा। नहीं, हम आपके पीछे हैं, डोंट वरी। बहुत So अच्छी I have one डिस्कशन more है, question. बहुत और आप में से जो भी इसका जवाब देना चाहे, सवाल मेरा ये है कि क्या जो ह्यूमन राइट अवेयरनेस है, does it link with this peace making thing? यानी हमें जितना अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगी, क्या ये हमारे पीस को डेवलप करने के लिए अच्छा होगा, या ये जो राइट्स की अवेयरनेस है ये थोड़ी खतरनाक होती है? क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में? मैं अनिल कपूर को कहूंगा कि इसका जवाब दे, बिकॉज ही इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड Okay. मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान, तो ही विल रिप्लाई Yes, दैट। Anil. Over to you. यस डेफिनेटली, जो राइट्स की इंफॉर्मेशन जो आपका, जी मरियम, बहुत नाइस क्वेश्चन आपने किया है और बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है हमारे इस फोरम के हवाले से। तो राइट्स की इंफॉर्मेशन के लिए हर इंडिविजुअल का एक राइट्स है कि हम राइट्स की इंफॉर्मेशन के साथ हों। जब तक हमारे पास राइट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। राइट्स की इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, ऑल इंडिविजुअल्स के, नॉट ओनली वी ऑल पीस मेकर, बट जो भी इंडिविजुअल हमारे साथ इस कंट्रीज का हमारे पार्ट है, इस दुनिया का जो हिस्सा, ये यूनिवर्सली जो हमारे राइट्स हमें एंटाइटल्ड है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से हो, चाहे वो हमारी कंट्री की तरफ से हो, चाहे वो हमें बाय बर्थ हमें जो राइट एंटाइटल्स किए गए बाय नेचर की तरफ से, तो ये हमारे चाहे वो जिंदा रहने के राइट्स हों या हमारे लाइफ स्टाइल्स के राइट्स हों, तो ये हर एक का अपना एक बुनियादी हकूक है कि उसको अपने राइट्स की अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राइट्स के बिना अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है अपने राइट्स के हवाले से, तो हम लोग आगे मूव नहीं कर सकते और वो आगे हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इन माई ओपिनियन के हमें राइट्स की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, और ये हमें इसके लिए अपने डिफरेंट लेवल पे इनिशिएटिव्स भी करने चाहिए, ना कि हमारे अपनी कम्युनिटी लेवल पे, बल्कि हमें ग्रास रूट लेवल से जो हमारे बच्चे जो हमारे स्कूल से हो रहे हैं, तो हमें उनका करिकुलम का पार्ट भी इसका होना चाहिए। जो राइट्स की इंफॉर्मेशन आजकल तो इस पर बहुत काम हो रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से या राइट्स की इंफॉर्मेशन के हवाले से डिफरेंट लेवल पे इस पर काम किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस पर ज़रूर काम होना चाहिए, और राइट्स की इंफॉर्मेशन बहुत मैंडेटरी है और बहुत ज़रूरी है ऑल इंडिविजुअल्स की। थैंक यू अनिल साहब, आपने मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी है। और बाकी अगर हमें एक दूसरे के राइट्स का पता होगा तो हमें ये पता होगा कि उसका ख्याल भी कैसे रखना है। तो दैट इज अ गुड थिंग ना। तो फिर झगड़ा ही नहीं होगा ना जब हम एक दूसरे के राइट्स का ख्याल रखेंगे तो।
मे भी बिल्कुल बहुत सारी रिस्पेक्ट चीजें इस पीस में वजह आ से भी जाएगी, हो फिर हम उसकी जाती हैं। वैल्यूज का ख्याल हम्म, रखेंगे। हम्म। मेरे हाल बहुत जी सारे जी झगड़े इसी वजह से ही होते हैं कि हमें एक दूसरे के राइट्स का पता नहीं होता और हम उसको वायलेट करते हैं, तो फिर सामने वाला नाराज हो जाता है। बल्कि मैं अनिल की बात में थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। मैं शायद बाकी लोग मुझसे एग्री करें या ना करें, वो एक गालिब का मिसरा है कि कुछ न समझे खुदा करे कोई, कुछ न समझे खुदा करे कोई। बिकॉज बहुत ज्यादा जो बाजुकात अवेयरनेस भी होती है ना, आपके राइट्स का पता होना भी होता है, तो वो भी आपको थोड़ा सा बाजुकात वो आपको मेंटली तौर पे व्हेन यू हैव बिकम कंसर्न्ड एंड यू कम टू नो अबाउट योर रियल राइट्स, तो वो जो राइट्स होते हैं सम टाइम इट बिकम प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एज वेल। इसमें एक लाइन मैं भी जोड़ता हूँ, गालिब की ही है। सर मैं अगर मेरी ही हिमाकत करता रहूं तो दुनिया की फिक्र कब करूंगा? तो इसीलिए दुनिया की फिक्र अगर करूं तो मेरी हिमाकत खुद ब खुद हो जाएगी। अपने आप पे ज्यादा मेरे खुद के राइट्स, मेरे खुद के फ्रीडम और मेरी लिबर्टी, इसके बारे में अगर मैं सोचूं तो आई विल बी ट्रैप इन वन प्रिजन। मैं मेरा ही सोच रहा हूँ। जब मैं दूसरों का सोचूंगा, दूसरे की फिक्र करूंगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा मेरी फिक्र करने लगेगा, तो मेरा लाइफ तो अच्छी बन जाएगा। तो अपनी फिक्र करना कम करो या बंद करो, दूसरे की फिक्र करना शुरू करो या बढ़ाओ, तो ही वी कैन इजीली अचीव द पीस। ये मेरा एक परसेप्शन है, कहना है। ठीक है। डॉक्टर शमशुद्दीन साहब, आप बोलिए ना। हाँ हाँ, मुझे ये कहना है कि ह्यूमन राइट्स भी जो होते हैं उसको भी कोई लिमिटेशंस होता है कि माय राइट स्टार्ट्स एंड एंड्स वेयर अदर्स नोज कम इन बिटवीन। मेरा अधिकार तब तक है जहां तक कि दूसरे की नाक बीच में आती नहीं। दूसरी बात, हमारे सबका जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स है टू लिव लाइफ विथ पीस एंड डिग्निटी। शांतता और सभ्यता के साथ जिंदगी जीना, ये तो हमारे सबका एक मूलभूत अधिकार है कि आज के जमाने में हमें सोचना पड़ेगा कि इस अधिकार का हनन कौन कर रहा है। तो हमको जब तक कॉज तक हम नहीं पहुंचेंगे, रूट्स तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमें अच्छी तरीके से उसको रेमेडीज जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हम सब जो अभी यहाँ पर जुड़े हुए हम दोस्त हैं, भाई बहने हैं, तो हमने तो शुरुआत की है और हमारी तो फसल बहुत आगे तक जाना है, सबको साथ लेकर जाना है। अभी हम 4 देश के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और भी बहुत सारे देश है कि जहां तक पहुंचना है। तो हम डायलॉग कैसा कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हमारा आखिरी मकसद होगा कि हम प्रेशर ग्रुप के तरह किस तरीके से काम कर पाएंगे। हमें अपनी जगह पर रहते हुए हमारे शासक को भी बताना चाहना चाहिए कि नहीं, कि हमें ये इंसानियत के लिए ये जरूरी है और ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब हो सकता है हम जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए कोशिश करेंगे। मैडम, हमारे मुराद सर पहुंच गए हैं। उनको उनका माइक म्यूट है, थोड़ा सा उनसे इंट्रोडक्शन करा के उनसे बात कर लीजिए। यस, है ना तो मुराद? मैं भी यही कहने वाली थी कि हम भी मुराद साहब के इंट्रोडक्शन की इंतजार कर रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना माइक अनम्यूट कर लें। जो मैंने अभी अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि हमें भी आपकी आवाज सुनाई दे। यस। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं माजरत ख्वाह हूँ, अभी ज्वाइन किया है और बस डॉक्टर साहब की बातें सुन ली अभी। तमाम दोस्तों का, नीले साहब का और चानू साहब और जितने भी वसीम भाई हैं, अनिल भाई, सबको मैं मशकूर हूँ उनका। अभी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तमाम दोस्तों के हवाले से जो दोस्त बात कर रहे हैं। और मैं तारुफ आपने इंट्रोडक्शन की बात, तो मेरा नाम मुराद अली खान मशवानी है। पेशावर हमारा कैपिटल है, प्रोविंशियल सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। ताल्लुक मेरा स्वात का तो आपने सुना होगा, स्वात
और दीर का मैं दीर से डिस्ट्रिक्ट दीर लोअर से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जैसे कि हमारे वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन का एक अहम जुज़ है बादशाह खान, महात्मा गांधी, बादशाह खान, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। तो बादशाह खान रिसर्च सेंटर और बादशाह खान ट्रस्ट एजुकेशन फाउंडेशन यहाँ पर एक फ़ाल इदारा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उनके स्कूल्स है और वो बादशाह खान की नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी के लिए वो काम करते हैं। तो उनका एक वॉलंटियर भी हूँ, मेंबर भी रह चुका हूँ बादशाह खान रिसर्च सेंटर का भी। और हमारा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मैं सूबाई लेवल पर प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजर हूँ। तो बस यही तारुफ है। ठीक है, तो मुराद साहब से हम उसी जो हमारा लास्ट सवाल था ह्यूमन राइट्स के ऊपर, इसी पे ही हम कमेंट ले लेते हैं और फिर इस मीटिंग को हम इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। तो मुराद साहब, हमारा सवाल ये था कि ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस जो है वो किस हद तक जरूरी है पीस डेवलप करने के लिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा मैम, ये बेसिकली ये तो लाजमी बात है। अवेयरनेस मसला भी हमारे माशरे में, हमारे समाज में मसला यही है कि हमें अपने राइट्स के बारे में कोई बेदारी, कोई अवेयरनेस ही नहीं होती। अगर हमें अपनी राइट्स के हवाले से हमें मालूम है कि ये मेरा हक है, ये मेरा राइट्स है, तो फिर हम उसके हवाले से अवेयरनेस भी पैदा कर सकते हैं और अपनी राइट्स के लिए फाइट्स भी कर सकते हैं। तो यही बुनियादी बात है जो डॉक्टर साहब ने बात की इस हवाले से कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या मेरा हक बनता है और क्या कहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है ना। तो यही है राइट्स पीस बिल्डिंग में, तो यही राइट्स से अवेयरनेस तो बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसके लिए हमने सबसे पहले काम यही करना होता है। और वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन का भी यही वो अहम होना चाहिए कि हमने सबसे पहले राइट्स के हवाले से अवेयरनेस के लिए काम करना होगा और अपने हक को और हुकूक और माशरे को भी समझाना होगा कि हम क्या हमारे राइट्स है और कहाँ तक हम उसके लिए फाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुराद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, वसीम साहब ने जो बात कही थी ना कि शुक्रगुजारी और खौफ खुदा जो है अगर होगा तो पीस जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बात है, सबसे आसान लफ्जों में जो मुझे बात ज्यादा समझ में आई है वो यही है कि हम सबको थैंकफुल होना पड़ेगा वट एवर वी हैव, चाहे वो हमारा मजहब है, हमारी वैल्यूज हैं, हमारी कल्चर है, माँ बाप हैं, पढ़ाई है, बहन भाई है, अच्छे दोस्त हैं, सबके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा कि हमारे पास ये सारी नेमतें हैं। तो जब हम शुक्रगुजार होंगे तो हम कंप्लेनिंग नहीं रहेंगे, और जब कंप्लेनिंग नहीं रहेंगे तो झगड़े किसी बात का नहीं होगा, तो सारी दुनिया में अमन हो जाएगा। तो आपको क्या बात समझ में आई इन सारी बातों से? कुछ बताइए, क्या समझ आया, क्योंकि बच्चों को समझना बड़ा जरूरी है। सबसे ज्यादा समझदार है बढ़िया। तो जी मुझे तो बहुत ज्यादा बातें पीस के भी बारे में समझ में आई। जैसे नेलीवन ने कहा था कि पीस एक वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारी जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ में भी वो चीज काम भी आ सकती है, क्योंकि जो हमारी हेल्थ होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पीस हमारी हेल्थ और हमारे हेल्थ का हिस्सा है। तो मैंने इससे ये वाली बात लर्न की कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है, और ये एक छोटा सा वर्ड नहीं है, मगर हम इससे ज्यादा भी लर्न कर सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने पीस को जो है वो हेल्थ से कनेक्ट किया है कि आप सेहतमंद होंगे तो दिमाग ठीक से काम करेगा, दिमाग ठीक से काम करेगा तो आपके इमोशन जो है वो स्टेबल होंगे, यू फील गुड अबाउट एवरीथिंग। बरिहा की बात से मैं एक बात मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो कह रहा है कि जहाँ पर अमन नहीं होता, पीस नहीं होता, तो वहाँ पर स्ट्रेस होता है, और जहाँ स्ट्रेस होता है तो वहाँ सिकनेस होती है। तो यही एक आम बात हुई कि पीस तो हेल्थ से, जाहिर ही बात है कि रिलेटेड ही है, हेल्थ से ही है। बरिहा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ बरिहा से। थैंक यू। तो ऐसे कि हमने पीस पे और मौजूद पे बात की, और मुझे भी अच्छा लगा। जैसे आप सबको पता है अब हमारे शो का इख्तिताम करने का टाइम आ गया है, मतलब बंद और एंड करने का टाइम आ गया है। तो आखिर में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि
आप क्या कोई मैसेज और जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें कोई मैसेज और कोई एडवाइस उन्हें देना चाहते हैं जाने से पहले? या मैं चाहूंगा कि ये जो पीस कंसेप्ट है, पीस मिशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीस कंसेप्ट, अमन शांति, ये पूरी दुनिया में कायम होनी चाहिए। उसमें सिर्फ ह्यूमैनिटी यही एक कंसेप्ट रहना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी जब हो जाएगी तब ये जो दीवारें हैं बीच की, अलग अलग सोच की, अलग अलग रिलीजन, नेशनैलिटीज, कास्ट, क्रीड्स, सब दूर हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग एक खून रहेगा, एक ब्लड रहेगा, तो ही प्योरिटी ऑफ पीस दैट वी कैन अचीव वेरी इजीली। तो सबसे उठ के जब सोचेगा रिलीजन, फिर नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, इवन सेक्स, कोई मोहतरमा है, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, ये भी सब दूर हो जाए। तो एक सोच जिसको कहते हैं, जो अपना दिल होता है, दिल की बात करके और शांति और अमन की बात करे, तो वी कैन इजीली द पीस। दिस इज द मैसेज फॉर द कॉमन वर्ल्ड। तो मैं भी यहाँ पे कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा जी। अनिल प्लीज। जी, I totally endorsed the point of view of नीलेबेन, और मैं इसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम जिस तरीके से मेरे व्यूअर्स के लिए सिर्फ यही मैसेज है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि हर किसी के हमारा जो डिफरेंट बिलीव्स हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो जी बिल्कुल आ रही है, अब आ रही जी है। बिल्कुल। मैं जैसे यही ऐड करना चाहूँगा और ये मेरा यही मैसेज होगा टू ऑल पीस लवर्स के लिए या और हमारे ऑडियंस के लिए जो भी हमें व्यूअर्स हैं, तो हमें रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी करनी चाहिए। डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यही पॉइंट है कि हमें हर किसी के बिलीव्स, कल्चर्स, उनकी वैल्यूज, उनके रिलीजन, उनकी कास्ट, क्रेड, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब तक हम लोग डाइवर्सिटी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज के साथ जो लोग हमारे इंडिविजुअल्स इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी को हम लेकर चलें और उनको एक्सेप्ट करें। जहाँ भी हम जिस खिते में हम बैठे हैं, या चाहे वो हम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, या डिफरेंट कंट्रीज या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफरेंट वैल्यूज, कल्चर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही मेरा एक मैसेज है कि हमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें पीस को इंश्योर करना चाहिए अपने लेवल। जी मैं भी एंड में मिस्टर नीले और अनिल की बात को इंडोर्स करते हुए एक फाइनल जो व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि हर इंसान के पास दो आंखें हैं। एक आंख यहाँ है, ये हो सकता है अच्छाई देख रही है, और ये दूसरी आंख है, ये बुराई देख रही है। और हमें जो अमन के लिए जो आंख चाहिए, दोनों को हमने फोकस करना है ऑन द पॉजिटिव डीड्स। और वो पॉजिटिव डीड्स सिर्फ और सिर्फ आपने इंसानियत के लिए करनी है। और इसको डॉक्टर शमसुद्दीन ने पहले भी आपको बताया कि आपने जो इसको एक्सेप्ट करना है कि एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमैनिटी, effect for the humanity, and the respect for the humanity. When you will do these three deeds together, definitely peace will be prevailing in the whole world. Yes. Yes, thank you. और अब बारी है मिस्टर चंदू की। जी मिस्टर चंदू, यस चंदू। Please unmute yourself because we can't hear you. Hello. Now you Yes, we can hear you now. नहीं, अभी मैंने सबकी बातें सुनी, सबने बहुत अच्छे बातें बताई। मैं भी एक एल्डरली एडवाइस देना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा हटके है, पीस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक अच्छा तरीका जीने का कैसा हो सकता है। देखो, आदमी जब पैदा होता है तो उसका बदन पे कपड़े नहीं रहते, उसको कुछ समझ नहीं आता, होते है, लेकिन वो हाथ में नहीं रहता। लेकिन आदमी ने कोशिश ये करना चाहिए कि जिंदगी में जब वो पड़ेगा, जब होगा, तब उससे ऐसे कुछ भी असाधारण बातें करके जाना चाहिए, लोग जाने के बाद में उसको सालों से याद करें। तो जिंदगी एक ही बार मिलती है, ये अच्छे काम के लिए यूज करना चाहिए। और अपने लाइफ में जितना अच्छा कर सकते हो, अपना जो बैलेंस शीट है, मैं बेसिकली बैंक वाला हूँ तो मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा। अच्छी का खाता तुम्हारा ज्यादा बढ़ना चाहिए, बुरे काम नहीं होना चाहिए। और मरते वक्त एक
साधारण आदमी था, ऐसे बोल के अपनी जिंदगी खत्म करना चाहिए, बस ये संदेश है। थैंक यू। अब डॉक्टर साहब से हम कहेंगे कि कुछ आखिर में अपनी बात कहें। डॉक्टर शमसुद्दीन। हाँ जी, अभी तो आखिर का संदेश यही होगा कि ह्यूमैनिटी मस्ट प्रिवेल, एंड टू प्रिवेल दिस टाइप ऑफ इंसानियत जो हम कहते हैं कि उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें जीना पड़ेगा। हमारी कौम ही इंसानियत होनी चाहिए, बाकी जो कौम है, आइडेंटिटी है, वो अभी बहुत पुरानी हो नए उसको लेकर जो यूनिवर्सल वैल्यूज है उसको साथ लेकर हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। और ये करने के लिए जो मैंने शुरू में कहा कि जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है उसको हमें वर्ल्ड सिटीजन के रूप में रखना चाहिए, और हम सब जो है तो बहुत जल्द ही दुनिया के नागरिक बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो वेल कल्चर्ड बिहेवियर है, इनका बिहेवियर है, वो हम नजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यही आज का मेरा संदेश है। Thank you so much, Dr. Saab, and thank you so much everyone. और especially I would like to thanks to नीलबैंड साहब कि आपने जो है हम सबको जोड़ा और इतनी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, और उम्मीद है कि इस तरह के सेशन हम बार बार करते रहेंगे, साथ जुड़ते रहेंगे, और स्पेशली हम बैरा अली के प्लेटफॉर्म से और कनेक्टेड पाकिस्तान प्लेटफॉर्म चीज को मजीद ग्रो करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। तो बैरा अली आप इसको क्लोज करें प्लीज। तो जी मैं क्लोज करने से पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और फिर मैं सबसे स्पेशली नीलबैंड करके हम दोनों ये साथ मिलकर ये पीस मिशन के तौर पर, और इन्होंने ये नीलबैंड ने इन्होंने मुझे जरूर हाथ में मतलब किया, और इन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, इन्होंने मेरी मदद भी की। तो थैंक यू सो मच सर, and to supporting me, thank you so much. और तमाम पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस इतनी अहम मौजू पर बात करने के लिए आप सब जमा हुए। उम्मीद है कि जब कभी हम दोबारा इस तरह का कोई सेमिनार वेबिनार करेंगे तो आप सब लोग अपनी अवेलेबिलिटी शो करेंगे और इस मोहब्बत भरे पैगाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए हमारी मदद करेंगे। Thank you very much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you very Allah much. Hafiz. Bye. Goodbye. Yes. Nice to meet you all.